Good afternoon, students. Today we are going to discuss a set which has been given by you. We will be discussing the questions which has been attempted by you. बच्चे if I tell you about today's paper, it was one of the easiest paper which was given to you. But uh, most of the students have started their paper from section A. बच्चे we are your well wishers and we have instructed you to start the paper from section C only, and this thing has not been implemented by you yet. बच्चे I really want to emphasize on the reason why we are saying to start your paper from section C. The reason is the only thing which you will be preparing at home would be your section C, right? When you prepare your section C, it becomes very much easy to score really well in the paper, as it is believed that first impression is the last impression, right? Whenever you start with the section B, it is believed that it is believed that you are going to write the best of you, the thing which you have already prepared, and it would definitely help you to put a right impact, a good impact, positive impact on the evaluator who will be checking your answer sheet. After completing of your section C, you can switch to section B, because the second most important section and the section which has been prepared by us in terms of formula, and we have also practiced it really very hard, is your section C. So I really want to tell, after completion of your section B and your section A, then go with the section C and section B, then go with your section A, right? So I am going to start the discussion of the paper, and I will be starting it from the section C itself. So बच्चे, the very first question is taken from a poem, and extract is there. The extract is from the poem Laburnum Top. The poet of the poem is Ted Hughes, right? So moving to the first question, if I discuss the first question says, who do the word she and it refer in the first line? The बच्चे, she refers to the bird, the mother bird, the goldfinch, and it refers to its young ones, right? क्वेश्चन नंबर 2 says, what does she do before flirting out? मतलब कि वो उड़ने से पहले क्या करती थी? तो मदर उड़ने से पहले अपने बच्चों को फीड करती थी, राइट? शी स्टोक इट फुल बिफोर फ्लर्टिंग आउट. इसका मतलब ये है कि वो अपने यंग वन जो थे, जो क्रीप कर रहे थे, उनको खाना खिलाती थी और फिर वो वहाँ से उड़ जाती थी. ओके. द थर्ड क्वेश्चन सेज, हाउ डू वी कम टू नो ऑफ हर आइडेंटिटी? उनकी आइडेंटिटी का हमें कैसे पता चलता है? तो बच्चे, इफ़ यू रीड दिस extract, it is clearly mentioned her barreled face identity mask, यानी we recognize the goldfinch by its face, जिस पे it is full of black stripes. तो उसके barreled face से पता चलता है कि उसकी identity क्या है. बच्चे, the next question is the name of the poem and the poet. It has been already told to you. Okay. Moving to the next question. The next question is from the poem itself. The question says, explain its silences. Majority of you have made a blunder in this question, and you have taken this question from father to son. You have considered this question from father to son, but this question is not from that particular poem, बच्चे. This question has been taken from a photograph by Shirley Olson. बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको ये लिखना था कि जब पोएट के मदर एक्सपायर हो गए, व्हेन शी लॉस्ट हर मदर, सो देयर वाज नो वन विद हुम शी कैन स्पेंड टाइम. वहाँ पे कोई नहीं बचा उसके घर में जिसके साथ वो टाइम स्पेंड कर सकती थी, वो बात कर सकती थी, और इवन शी कैन शेयर हर आइडियाज और हर इमोशंस टू. She was full of loneliness, and that's why it seems like it's silences. कि चारों तरफ जो है वो silence है. Okay. The next question is, why is the image of the engine evoked by the poem? Basically, बच्चे, if we talk about the engine is the main
thing which is pulling the carriages along, right? जो ट्रेन के डब्बों को पुल करता है. I'll give you an example. If I ask you who is the engine of your family, then definitely you will be going to reply me that my father is the engine, है ना. आपके father जो हैं वो engine है because he is running the show. इसका ये मतलब है कि he is responsible for feeding you up, he is responsible for your studies, he is responsible for each and everything, right? तो यहाँ पे the question has been asked, why is the image of the engine evoked by the poet? Because the goldfinch, the mother bird, is responsible for the feeding of her family, that is the young ones. Okay, तो बच्चे next question है, has the poet got an answer to the question where did my childhood go? Definitely poet has got an answer and it is being mentioned in the last stanza of the poem. Last stanza में the poet comes to know that जो childhood है वो एक इन्फेंट की स्माइल में, राइट? ओके, तो बच्चे वी हैव कंप्लीटेड इट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड सू हर्ट हरसेल्फ एंड हाउ डिड शी बियर द इंजरी? दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल आर टुगेदर, राइट? क्या हुआ था आफ्टर द न्यू ईयर तक सब कुछ सही था. अब फाइनली जो नरेटर थे वो अपनी फैमिली यानी सिजेन के साथ, सू द डॉटर, जॉनथन के साथ और मैरी के साथ वो इंडियन ओशन में एंटर कर चुके थे. इंडियन ओशन में सेल कर रहे थे, अपना वॉक कर रहे थे. बट 2 जनवरी को क्या हुआ, 2 जनवरी को शाम को स्काई एकदम से ग्रे हो गया, राइट? द गस्टी विंड्स वर स्टॉप्ड, जो तेज़ हवाएं थी वो रुक गई. एंड इट वॉज ए सिग्नल कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है. एंड सडनली ही सॉ ए वेरी बिग वेव कमिंग टूवर्ड्स देम, ए वर्टिकल वेव. ठीक है, एक वर्टिकल वेव से वेव वॉकर जो उनका शिप था वो हिट हुआ. और हिट होने के बाद जो नरेटर था ही गॉट डीबोर्डेड, मतलब कि वो शिप से नीचे गिर गए, राइट? समहाउ ही मैनेज टू कम बैक इन द शिप. जब वो शिप में आए तो ही सॉ कि उनकी जो रिब्स थी वो टूट चुकी थी, उनके मुंह में खून था, उनके दांत टूट चुके थे. एंड ही वॉज हैविंग ए हेड इंजरी टू. तो इतनी देर में उसकी वाइफ आती है. उसकी वाइफ कहती है कि शिप के अंदर पानी घुस रहा है. तो वो कहती है कि मैं व्हील संभालती हूँ एंड यू गो एंड सी व्हाट टू डू. तो अंदर जाते हैं. जो क्रू मेंबर हैं लैरी एंड हर्ब, वो पानी को पंप आउट कर रहे होते हैं. मगर जो मोटर होती हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं, उसमें डर्मिस भर जाता है, उसमें सॉइल भर जाती है, उसमें मिट्टी भर जाती है. तो नाउ द नरेटर इज लुकिंग फॉर ए मैनुअल मोटर. ही गोज टू द रूम ऑफ द किड्स. वहाँ पे बच्चों को देखता है और वहाँ पे सू से पूछता है कि आर यू ओके? सू जो है वो नहीं बताती कि शी इज़ इंजर्ड बिकॉज शी डोंट वांट टू डिविएट हर फादर. शी वांट्स हर फादर टू बी पॉजिटिव एंड टू फाइट दिस सिचुएशन एंड गेट एवरीवन आउट ऑफ दिस सिचुएशन. तो बच्चे 2 जन को सू अपने आप को हर्ट करती, इंजर्ड हो जाती है. एंड शी बियर्स द इंजरी बाय नॉट टेलिंग इट टू एनीवन, by keeping the injury in herself only, because she want to keep her father positive and want that father must take everyone out of this unfortunate and difficult situation. Okay, the next question यहाँ पे है, Tibetan Mastiffs are popular in China's imperial court. टिबेटियन मैस्टिफ क्या हैं बच्चे? टिबेटियन मैस्टिफ डॉग्स हैं जो कि ड्रोगबाज रखते थे. ड्रोगबाज कौन होते हैं? ट्राइबल पीपल होते हैं. ये क्यों रखते थे चाइनीज कोर्ट में? क्यों फेमस है? क्योंकि ये डॉग की एक डेडलीस्ट ब्रीड है, राइट? दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे कैन इवन फाइट विद द डेंजरस वाइल्ड एनिमल्स एंड दे आर केप्ट देयर फॉर स्निफिंग पर्पस. स्निफिंग क्या होता है? सूंघने के लिए. ठीक है, दे आर वेरी गुड इन एंड हाई इन स्मेलिंग स्किल्स. स्मेलिंग मतलब कि स्निफिंग स्किल्स. तो दैट्स वाई दे वर केप्ट इन द चाइनीज इंपीरियल कोर्ट. बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर फ्रॉम द एलिंग प्लैनेट. द क्वेश्चन सेज, डू यू थिंक द टाइटल एलिंग प्लैनेट इज एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर आवर प्लैनेट अर्थ? डेफिनेटली. एलिंग प्लैनेट का मतलब क्या होता है? अगर हम हिंदी में बात करें, एलिंग का मतलब होता है बीमार, राइट? बीमार प्लैनेट. डेफिनेटली दिस इज अ perfect and appropriate title for the earth, because in this chapter
it has been this chapter, it has been written how we as a human is deteriorating this beautiful planet, right? And how we are exploiting, we are over exploiting the resources of this beautiful planet. Okay, but coming to the next question, the next question says, describe the happiest half an hour of the day for the grandmother. अगर happiest half an hour of the day for the grandmother की बात करें तो this question has been taken from the portrait of the lady. The portrait of the lady is the very first chapter of Hornbills which has been written by खुशवंत सिंह. अब क्या होता है, जब खुशवंत सिंह यूनिवर्सिटी में मूव कर जाते हैं, अब दादी माँ अकेली हो जाती है, बट शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी. वो अपना जो हाफ एन आवर है, जो हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर है, वो ब्रेड क्रम्स बर्ड को खिलाकर स्पेंड करती हैं. ये जो बर्ड्स हैं इस हाफ एन आवर में ब्रेड क्रम्स खाती हैं जो कि दादी माँ देती हैं. उसके बाद द बर्ड्स सिट्स ऑन द शोल्डर ऑफ द दादी माँ और वो उड़ती नहीं है. सो दिस इज़ द हैप्पीएस्ट आवर विच हैज़ बिन स्पेंड बाय grandmother by feeding birds with breadcrumbs. Okay, बच्चे देर वॉज ए क्वेश्चन के क्या क्या डिफ़िकल्टीज थी, राइट? अगर डिफ़िकल्टीज की बात करें तो जो रोड्स थी वो ख़राब थी, टेम्परेचर अच्छा नहीं था, निक के पास गर्म कपड़े नहीं थे बिकॉज लामो हैज़ गिफ्टेड हर ए शीप स्किन कोट, राइट? जब वो होर जाता है तो वहाँ पे जो रोड्स हैं दैट्स आर नॉट इन टू देयर बेस्ट कंडीशंस, दे आर ऑल्सो फिल्ड विद स्नो. ठीक है, इट वॉज ए चैलेंज टू मूव ऑन दीज टाइप ऑफ रोड्स. फाइनली जब दार्शन पहुँचते, दे गॉट देयर दार्शन पहुँचते तो उसकी हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाती है, उसके नोज़ ब्लॉक हो जाती हैं, उसको चेस्ट पेन होता है, ही इज़ नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट. वो लेटता है तो उसको ब्रेथलेसनेस होने लगती है. एंड नेक्स्ट डे जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो ही इज़ नॉट इन टू ईटिंग दी ट्रेडिशनल मेडिसिन बट समहाउ ही टेक्स टू गेट रिलीफ. और सीतन उसके बाद चला जाता है. नाउ सीतन के जाने के बाद ही हैज़ नो वन विद हुम ही कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश. उसको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आती है. दूसरी प्रॉब्लम ये, वो दार्चन में ऑफ सीज़न में पहुंच जाता है जबकि प्लेग्रिम्स जो हैं वो मिनिमम होते हैं या नो प्लेग्रिम्स होते हैं. एंड ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन विद द लोकल्स ऑफ दार्चन ही is not able to take a decision कि whether to go for Kora right now or not, because he is not aware about the conditions, about the climatic conditions of Mount Kailash. तो बच्चे ये दिखते हैं जो कि वो फेस करता है. ओके, यहाँ पे ये क्वेश्चन इस पेपर में चेंज हुआ है. आई वांट टू डिस्कस दिस क्वेश्चन विद यू अगेन. 11th क्वेश्चन सेज, ये क्वेश्चन नहीं था, इसकी जगह एडवेंचर का आया था, है ना बच्चे? सॉरी, सिल्क रोड का आया था. बट एक और क्वेश्चन है, कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस फिट्जजेराल्ड. तो बच्चे अगर कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस फिट्जजेराल्ड की बात करें तो फिट्जजेराल्ड कौन थी? शी वॉज नेबर ऑफ मिसेस पियर्सन. ये पियर्सन की नेबर थी. ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस थी, स्मार्ट वूमन थी. ठीक है, शी वॉज ए मैजिशियन, शी हैज़ लर्नड मैजिक फ्रॉम द ईस्ट. इनकी जो वॉइस थी वो डीप थी. शी वॉज डोमिनेटिंग, शी वॉज बोल्ड. She strongly believed that women should be respected in the society, right? And she was there with Mrs. Annie Pearson and help her to set the spoiled Annie Pearson's spoiled husband, जो कि George Pearson थे, and children right. So she was a person who wanted females to be respected by children and husbands, right? Okay. बच्चे इसके और में एक और क्वेश्चन है. The question says, describe how Mrs. Pearson is treated by her own children and husband. सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करें तो I really want to take you back in the drama. This is a very important drama. बच्चे ये ड्रामा करना ही करना है. 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट ड्रामा से ही आएगा एंड इसमें ऑप्शन होगा, राइट? तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिसेस पियर्सन को एक बहुत ही लविंग एंड केयरिंग मदर बताया है इस प्ले में. शी इज़ सो केयरिंग कि उसके हस्बैंड, उसके बच्चे उसे जो भी कहते हैं, वट एवर दे आर सेइंग, दे आर इंस्ट्रक्टिंग, शी इज़ परफॉर्मिंग, है ना, शी इज़ डिलीवरिंग इट. बट एट द एंड ऑफ द डे शी इज़ ऑल्सो ह्यूमन. शी इज़ नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम हर चिल्ड्रन एंड हस्बैंड, राइट? पहली बात. दूसरी बात, शी इज़ वर्किंग टायरलेसली. शी इज़ वर्किंग फॉर द हैप्पीनेस ऑफ द चिल्ड्रन एंड जॉर्ज पियर्सन, her husband, without taking an off, without complaining anything,
she is doing everything at her best, but it is weird, it is unfortunate that she is not getting acknowledgement for that. ठीक है, उसे कोई भी अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है, उसे कोई भी रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है. और वन डे शी वॉज डिस्कसिंग द सेम विद हर नेबर फिट्जराल्ड. ठीक है, और नेबर कहती है कि यू डोंट हैव टू वरी इफ़ यू से कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर सकती हूँ. यहाँ पे मिसेस पियर्सन कहती है हाउ हाउ इट कुड बी पॉसिबल. तो यहाँ पे फिट्जराल्ड कहती है कि आई नो मैजिक, जो मैजिक मैंने ई से सीखा है. तो यू डोंट हैव टू वरी, हम मैजिक से अपनी पर्सनालिटी स्वैप करेंगे. आई विल बी स्वैपिंग माई बॉडी इनटू योर्स, पर्सनालिटी इनटू योर्स, एंड यू विल बी कमिंग टू माई बॉडी, राइट, एंड यू विल बी स्टेइंग एट माई होम. आप मेरे घर में स्टे करो एंड आई विल बी सेटिंग योर फैमिली. तो ये पहले पियर्सन मानती नहीं है, बाद में मान जाती है. अब पर्सनालिटी स्वैप होती है, मिसेस फिट्जराल्ड पियर्सन बन जाती है और पियर्सन जो है वो मिसेस फिट्जराल्ड बन जाती है, राइट. मिसेस फिट्जराल्ड कहती है पियर्सन से कि मैं कहाँ रहूँगी, तो पियर्सन कहती है जाओ तुम मेरे घर पे रह लो. अब जो पियर्सन है वो फिट्जराल्ड है और जो फिट्जराल्ड है वो पियर्सन है, राइट. ध्यान से सुनना. अब मिसेस पियर्सन घर आती है, शी स्टार्ट स्मोकिंग. वहाँ से डॉरिस आती है, डॉरिस उसकी बेटी होती है, कहती है कि मम्मा आर यू स्मोकिंग, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम क्यों स्मोक कर रही हो. तो वो रिप्लाई करती है कि स्मोकिंग करना इज़ लीगल. कहाँ पे लिखा है कि स्मोकिंग करना इलीगल है, राइट. तो वो कहते कि तुमने वट एवर, तुमने मेरी येलो ड्रेस प्रेस की. तो वहाँ पे मिसेस पियर्सन कहती हैं नहीं, तुम्हारा काम है, तुम कर लो. तो वो कहती नहीं, आज मैं शाम को चार्ली स्पेंसर के साथ जा रही हूँ इवनिंग में, तो आई टोल्ड यू टू प्रेस माई येलो ड्रेस. तो कहती है इट इज़ योर वर्क, यू हैव टू डू इट, व्हाट आई हैव टू डू विद इट. और वो चार्ली स्पेंसर का मजाक उड़ाती है. तो यहाँ पे डॉरिस जो है रोना शुरू कर देती है और चली जाती है. अब साइरल आता है. साइरल कहता है कि आई हैव टू लीव फॉर समथिंग इन द इवनिंग, क्या मेरे लिए आपने खाना बनाया है. तो वो कहती नहीं, आई हैवंट मेड एनीथिंग फॉर यू, इट्स योर वर्क, यू डू इट. तो साइरल कहता है व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आपके साथ क्या गलत है. और वो देखता है कि मदर आज जो है वो कुछ अलग से बिहेव कर रही है, राइट. यहाँ पे साइरल देखता है कि डॉरिस रोते रोते आती है और वो कहता है कि मदर ने तुमसे भी कुछ अलग तरीके से बिहेव किया. तो डॉरिस कहती है हाँ मदर आज थोड़ा अलग बिहेव कर रही है. तो कहते हैं कि आज शाम के प्लान कैंसिल करते हैं, लेट्स सी व्हाट मदर डज जब फादर विल बी कमिंग. तो फाइनली जो है जॉर्ज पियर्सन जो कि फादर हैं और हस्बैंड हैं मिसेस पियर्सन के, वो आते हैं और वो कहते हैं, बैठते हैं और कहते हैं कि आई एम गोइंग टू क्लब, मैं क्लब जा रहा हूँ, डोंट मेक टी फॉर मी. तो यहाँ से मिसेस पियर्सन कहती हैं जो कि फिट्जराल्ड है कि आई हैवंट प्रिपेयर्ड टी फॉर यू. तो कहते हैं क्या तुमने मेरे लिए टी नहीं बनाई है, क्यों नहीं बनाई है. यहाँ पे जो जॉर्ज पियर्सन है उनका थोड़ा सा ईगो हर्ट हो जाता है, राइट. और यहाँ पे जो फिट्जराल्ड है जो अब मिसेस पियर्सन की बॉडी में है, ठीक है, मिसेस पियर्सन कहती है कि लोग तुम्हारा क्लब में कितना मजाक उड़ाते, तुम्हें दे कॉल यू एज ओम्पी पॉम्पी पियर्सन, राइट. दे कॉल यू ओम्पी पॉम्पी पियर्सन. तो ओम्पी पॉम्पी पियर्सन सुन के वो कंफर्म करता है अपने बेटे से साइरल से कि सच में पीपल कॉल मी ओम्पी पॉम्पी पियर्सन. तो साइरल कहता है येस डैड, पीपल कॉल यू ओम्पी पॉम्पी पियर्सन. तो वो साइड में जाके बैठता है. तो इतनी देर में बेल पे नॉक होता है और साइरल दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि साथ वाली बुढ़िया आई है ना, द ओल्ड लेडी विच लिव्स एज आवर नेबर, शी हैज़ कम. तो यहाँ पे पियर्सन कहते हैं कि तुम हाउ कैन यू यूज़ दीज वर्ड फॉर समवन हु इज़ एल्डर टू यू, राइट. और यहाँ पे वो अंदर आ जाती है फिट्जराल्ड जो कि असली में पियर्सन है, और वहाँ पे सबको है बोलती है और ये जाके बैठती है इसके साथ पियर्सन के पास और कहती है कि लेट्स रीस्वैप दी पर्सनालिटी, बहुत हो गया, इट्स इनफ नाउ आई वांट टू लिव विद माय फैमिली. तो यहाँ पे फिट्जराल्ड जो कि पियर्सन की बॉडी में है वो कहती है कि गिव मी सम टाइम, आई हैव सेटेड एवरीथिंग एंड डेफिनेटली गिव मी सम टाइम, आई विल सेट देम ऑल. कहते नो लेट्स रीस्वैप. ये रीस्वैप करते इतनी देर में जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको अपनी गलती का पता चल जाता है. एंड जो अब असली फिट्जराल्ड है जो अपनी बॉडी में आने के बाद वो कहती है कि डोंट कीप देम लूज, उनको अब ढीला मत छोड़ना, राइट. तो यहाँ पे वो कह के वापस चली आती है और ये सब इसको सॉरी बोलते हैं, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग हर. और ये रात को कहते हैं कि रात को क्या करेंगे, और बच्चे कहते हैं कि खाना हम बनाएंगे, और ये रात को रमी खेलते हैं. एंड यहाँ पे आपका प्ले जो है वो एंड हो जाता है, राइट बच्चे. तो दिस वॉज द क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. नाउ यहाँ पे सेक्शन सी ख़त्म हो गया है. नाउ आई वुड लाइक
यू टू सी सेक्शन बी, हम यहाँ पे सेक्शन बी की बात करेंगे. जस्ट अलाउ मी अ मिनट. Section B is here only. Section B, yes. Okay. Moving back and taking you to the section B. सेक्शन बी को जूम कर लेते हैं. सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन सेज यू आर प्रेसिडेंट ऑफ कल्चर सोसाइटी ऑफ योर स्कूल. यू आर प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज ए कल्चर प्रोग्राम. राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस स्कूल्स नोटिस बोर्ड इन्वाइटिंग नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स विलिंग टू पार्टिसिपेट. यू आर सुधीर. ठीक है, ये जो यू आर सुधीर द प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी. तो यहाँ पे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, आपको आपका नाम दी है, आप एक नोटिस लिख रहे हैं एज ए सुधीर. सुधीर कौन है? प्रेसिडेंट है किसका? कल्चर सोसाइटी ऑफ योर स्कूल, यानी आप अपने स्कूल के कल्चर सोसाइटी के प्रेसिडेंट हो. आप क्या प्लान कर रहे हो? आप प्लान कर रहे हो अपने स्कूल में कल्चर प्रोग्राम का. ठीक है, जिसके लिए आप नोटिस स्कूल के नोटिस बोर्ड में लगाएंगे और बच्चों अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को इनवाइट करेंगे सो डैट दे कैन ईजिली पार्टिसिपेट इन इट. तो बच्चे सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप नोटिस में बॉक्स बनाएंगे. नोटिस बॉक्स में आता है, आप नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे. नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में स्कूल का नाम आएगा. स्कूल का नाम पर्सनल नहीं होना चाहिए. आप लिख सकते हैं AXN पब्लिक स्कूल. राइट, पब्लिक स्कूल लिखने के बाद लेवल लाइन, राइट नोटिस, लेवल लाइन आप लेफ्ट हैंड साइड पे डेट लिखेंगे 2 मार्च 2020. ठीक है, लेवल लाइन आप हेडिंग लिखेंगे. हेडिंग क्या होगा? टेक इट फ्रॉम द क्वेश्चन ओनली. अब क्वेश्चन क्या आप प्लान कर रहे हैं? कल्चर प्रोग्राम, तो हेडिंग कल्चर प्रोग्राम लिख दीजिए. लेवल लाइन स्टार्ट विद द बॉडी पार्ट. बॉडी पार्ट कैसे स्टार्ट करेंगे? इट इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए कल्चर प्रोग्राम ऑन 25th of March 2020. Those who are interested can give their names to the undersigned or they can give their name to the class teacher. अब इसको क्लोज कैसे करेंगे बच्चे? सबसे पहले आपका नाम आएगा सुधीर और उसके नीचे आपकी डेजिग्नेशन आएगी. डेजिग्नेशन क्या है? प्रेसिडेंट. ये सभी चीज़ें जो है ये बॉक्स में आएंगी. राइट, और बॉक्स में आने के बाद बच्चे यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द मेकिंग ऑफ द बॉक्स. यू हैव टू मेक द बॉक्स विद द हेल्प ऑफ ए स्केल एंड ए पेन. In English paper, in my subject, you are not allowed to use pencil. पेंसिल का यूज़ नहीं करेंगे. पेंसिल का यूज़ कोई नहीं करेगा. राइट, पेंसिल का यूज़ इज़ प्रोहिबिटेड. ओके, अब इसके और के क्वेश्चन की हम बात करते हैं. और का क्वेश्चन जो है वो कहता है कि यू नीड 2 लेडी चेकर्स. आपको 2 लेडी चेकर चाहिए. किस कंपनी में? ग्लोबल एक्सपोर्ट के लिए. ये कंपनी कहाँ पे? ये विराट नगर कोलकाता में है. इसका पिन कोड दिया है. आपको एक एडवर्टीजमेंट फ्रेम करना है सिचुएशन वेकेंट के लिए. कौन से न्यूज़पेपर में आएगा ये? द मॉर्निंग स्टार में. ठीक है, तो मॉर्निंग स्टार क्या है? ये न्यूज़पेपर है. आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे न्यूज़पेपर ने दिया है, यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम दिया है. राइट, तो आपने सबसे पहले बॉक्स बनाना है. एडवर्टीजमेंट बॉक्स में आती है. आप इसमें हेडिंग लिखेंगे. हेडिंग क्वेश्चन में दी है सिचुएशन वेकेंट, और रिक्वायर्ड से शुरू कर सकते हैं. यहाँ देयर इज़ अ नीड ऑफ 2 लेडी चेकर्स फॉर आर एक्सपोर्ट बिजनेस. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस आप लिखेंगे. क्राइटेरिया टू बी फुलफिल्ड. इसकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सैलरी आप टेबलर फॉर्म में ही बनाएंगे. बहुत ही अच्छे से स्टूडेंट ने प्रेजेंट किया है. राइट, और उसके बाद अपनी डिटेल देंगे जहाँ पे एप्लीकेंट आपको कॉन्टैक्ट कर सके. सेंड योर पर्सन डिटेल ऑन द फॉलोइंग ईमेल. आप आर वर्मा हैं, मैनेजर ग्लोब एक्सपोर्ट. एड्रेस दिया है आपने, ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर लिखा, इसको क्लोज कर दिया. ठीक है बच्चे, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. बच्चे moving to next question. The next question says you are Harpreet, write an email to your friend inviting him to your sister's wedding. अब email जो है बच्चे, email आपको personally आएगा. You don't have any official email. email का formula you have to write. इसका proper sequencing होना चाहिए. FDTCS. यहाँ पे डेट के फॉर्मेट में गलती है इस शीट में. डेट का फॉर्मेट आप वैसे ही लिखेंगे जैसा मैंने आपको बताया था, 14 मार्च 2024. जब भी आप सेक्शन बी की बात करें हर जगह आप डेट जो है 14 मार्च 2020 ही डालें. राइट, इसको डियर से शुरू करें. डियर, द नेम इज़ नॉट गिवन सो यू कैन गिव एन इमेजिनरी नेम. राइट,
आप इसमें इनवाइट करेंगे। जब भी आप एक पर्सनल कन्वर्सेशन शुरू करते हैं तो बच्चे आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले हाल चाल पूछते हैं, है ना। आई हाउ आर यू, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम इनवाइटिंग यू टू माई सिस्टर वेडिंग दैट इज़ ऑन 7th of April. We will enjoy a great time as a friend. You have to come in 2 to 3 odd days. Earlier for the help, very good, very nice written by the student. Also bring your family along with you. They will spend good time with my family and we would be delighted by your presence at the ceremony. Your friend, और नाम दिया है, ये सेम नाम आप यूज़ करेंगे, हरप्रीत. नाउ ही इज़ राइटिंग ईमेल टू मॉर्टल, और आपका टू का ईमेल और नाम सेम होना चाहिए. हरप्रीत ईमेल भेज रहा है तो ईमेल भी में भी हरप्रीत है और नीचे भी हरप्रीत आया है, राइट. आपको इन बातों का ध्यान रखना है, राइट. ओके. So question is, you are Imran of 15 Nehru Park, Ramban. Write a letter to the police commissioner complaining about the increasing number of theft in your area. आप इमरान हैं, आप कहाँ पे रहते हैं, आप नेहरू पार्क में रहते हैं, ठीक है. आपको एक लेटर लिखना है. किसको लिखना है? पुलिस कमिश्नर को, जिसको आप बताएंगे कि किस तरह से आपके एरिया में जो थेफ्ट है वो बढ़ रहे हैं. तो बच्चे यहाँ पे एक छोटी सी गलती की है. इस स्टूडेंट ने नाम लिख के इमरान नहीं आएगा, इमरान जो है वो आपका सिग्नेचर में आएगा. अब यहाँ पे अगर होता दी प्रिंसिपल होता, या आप एज ए प्रिंसिपल लिख रहे होते पुलिस कमिश्नर को, ठीक है, या आप एज ए सरपंच लिख रहे होते तो यहाँ पे सरपंच आता, यहाँ दी प्रिंसिपल आता. तो नाम, दिस इज़ रॉन्ग वे टू राइट द लेटर. यहाँ पे आप सिर्फ एड्रेस लिखेंगे, ठीक है. डेट आप नहीं लिखेंगे, यहाँ पे डेट का फॉर्मेट गलत है, यहाँ पे TH नहीं आएगा, और नीचे दी पुलिस कमिश्नर आप इसको एड्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे रामबन आ जाएगा, और यहाँ पे जम्मू और साथ में पिन कोड आ जाएगा. पिन कोड आपने इमेजिनरी डालना है दोनों. सब्जेक्ट क्या है, आप कंप्लेन कर रहे हैं अबाउट इंक्रीजिंग नंबर ऑफ थेफ्ट. तो बच्चे जब आप लेटर लिखेंगे, आप रिस्पेक्टेड सर से स्टार्ट कर सकती हैं, सर मैडम से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है. आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि लिखा आई एम ए रेजिडेंट ऑफ दिस नेहरू पार्क. आप इसको चेंज करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द ग्रोइंग मिनियाक ऑफ थीव्स इन माई लोकेलिटी. मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, ठीक है. आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द ग्रोइंग मिनियाक. मिनियाक क्या होता है? मिनियाक होता है थ्रेट. अगर मिनियाक की बात करें तो इसके स्पेलिंग होते हैं MENACE. थ्रेट इसका मतलब होता है थ्रेट, THREAT, या फिर डेंजर, राइट. अब आप क्या क्या लिख सकते हैं कि लास्ट वीक अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ वाले घर में एक चोरी हुई, जिसमें 10 लाख कैश और कुछ ऑर्नामेंट्स ले लिए. हमने एज ए मोहल्ला वेलफेयर सोसाइटी हमने SHO को कंप्लेन करी, और SHO को रिक्वेस्ट करा कि पेट्रोलिंग जो है वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए शाम को. एंड वी वांट टू हाईलाइट दिस केस इन फ्रंट ऑफ यू बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लूट or act of theft which has happened in the area. So we also request you to please instruct the SHO of the area to keep a permanent patrolling of the cops, and also the naka should be placed during night and VRs so that these kind of unfortunate incidents could be prevented in coming future. ठीक है बच्चे. तो आप यहाँ के नीचे क्या कर सकते हो, you have to leave a line. अब यहाँ पे नाम आएगा, थैंक यू के बाद लीव अ लाइन इमरान, और नेहरू पार्क रामबन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे नाम आएगा इमरान, बिकॉज आपने एड्रेस जो है वो तो ऑलरेडी लिखा है, तो दोबारा एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है. ओके. तो बच्चे इसके साथ एक और क्वेश्चन आया था. क्वेश्चन कहता है कि राइट एन एप्लीकेशन. बेसिकली दिस इज़ ए एरर, ये प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पे लेटर है, ठीक है. राइट एन लेटर to the principal of your school XYZ requesting him arrangement for special coaching classes for you in mathematics. Give reason why you want it. आप एक लेटर लिखेंगे प्रिंसिपल सर को और उन्हें बताएंगे कि आपको मैथमेटिक्स की एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस लगानी है, और उसके रीज़न को आप जस्टिफाई करेंगे, ठीक है. तो बच्चे अगेन यहाँ पे आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो प्रिंसिपल आपका रिसीवर एड्रेस हो जाएगा. सेंटर एड्रेस में आपका अपना नाम, डेट, ठीक है. फिर रिसीवर एड्रेस आएगा. रिसीवर एड्रेस के बाद आप लाइन छोड़ेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे फॉर द अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल मैथमेटिक
मैथ्स क्लासेस और मैथमेटिक्स क्लासेस. उसके बाद लीव अ लाइन, रिस्पेक्टेड सर, बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट एंड यू राइटिंग टू द प्रिंसिपल. तो आप यहाँ पे सर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप रिस्पेक्टेड सर ही लिखेंगे. तो आप बता सकते हैं कि पिछले 1 महीने से आर मैथमेटिक टीचर वॉज नॉट कमिंग ड्यू टू हिज health issues, so we have not completed our syllabus yet and our exams are about to commence from the 5th of May. And here I, on the behalf of my class, I would like to request you to organize special classes for this particular subject, so that we can cover up our syllabus. As you know, okay, we are lagging behind. There are many students who don't have the basic concept of the problems of algebra unit, and I request you to make special arrangement for these classes, so that our doubts could be completed at micro level, and definitely after completion of the doubt we will be working hard to do our best in the upcoming exams या scheduled examination. तो बच्चे इसके बाद आप इसमें लाइन छोड़ के थैंकिंग यू, आपका नाम, दैट्स इट, नो एड्रेस हैज़ टू बी गिवन. ठीक है बच्चे, ओके. तो बच्चे देयर इज़ एन आर्टिकल. अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आर्टिकल है हैज़ार्ड्स ऑफ वॉचिंग टीवी फॉर चिल्ड्रन. अब बच्चे अगर हैज़ार्ड की बात करें तो हैज़ार्ड क्या होते हैं? हैज़ार्ड होते हैं नेगेटिव चीज़ें, है ना. किस तरह से ये चिल्ड्रंस को इफ़ेक्ट करता है टीवी देखना. तो बच्चे किस तरह, आप इसमें सारे नेगेटिव लिखेंगे, आप इसमें पॉजिटिव नहीं लिखेंगे. अगर बेनिफिट्स ऑफ टीवी होते तो यहाँ पे बेनिफिट्स लिखते हैं, और अगर इम्पैक्ट होता, राइट, तो वहाँ पे आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिख सकते थे. तो इसमें आप क्या क्या कवर कर सकते हैं? दिस इज़ ए वेरी इजी टॉपिक. आई विश कि आपने इसमें सभी चीज़ें कवर की होंगी. जैसे कि ज़्यादा टीवी देखने से आईसाइट वीक होती हैं, ठीक है. हमारा स्लीपिंग पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब होता है. ज़्यादा टीवी देखने से हम लथार्जिक हो जाते हैं. लथार्जिक का मतलब होता है कि हम लेज़ी हो जाते हैं, ठीक है. बैठे बैठे हमें ओबेसिटी हो जाती है. ओबेसिटी क्या होता है? मोटापा होता है, ठीक है. हम टीवी से एज एन इंडिविजुअल एडिक्ट हो जाते हैं. हमें एडिक्शन होने के चांसेस होते हैं. ये हमारे माइंड को, बच्चों के माइंड को, बच्चे एडिक्ट होते हैं. बच्चों, इस तरह से आप लिख सकते हैं, बच्चे के माइंड को इन्फ्लुएंस करता है, इफ़ेक्ट करता है. बच्चों के बिहेवियर में चेंजेस देखी जा सकती हैं. बच्चों के पोस्चर जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है. बच्चों को दे मे फील क्रोनिक पेन इन देयर नेक एंड दे ऑल्सो गो थ्रू दी बैक प्रॉब्लम्स. उनको बैक की प्रॉब्लम, पोस्चर प्रॉब्लम, नेक में पेन, क्रोनिक पेन्स हो सकती हैं, ठीक है बच्चे, ओके. इसके साथ ही एक और क्वेश्चन था जिसमें आपको स्पीच लिखना था, द बेनिफिट ऑफ अर्ली राइजिंग. बच्चे अगर स्पीच की बात करें तो स्पीच हैज़ ए वेरी सिंपल फॉर्मेट, ठीक है. स्पीच की बात करें, मैं यहाँ पे स्पीच की बात कर रहा हूँ, तो स्पीच में आपको हेडिंग लिखनी है. हेडिंग को सेंटर में प्लेस करना है, राइट. ये हेडिंग है, हेडिंग को आपको सेंटर में प्लेस करना है, लाइन छोड़नी है, एंड यू हैव टू राइट दी ओपनिंग लाइन. क्यों? ओपनिंग लाइन में आप यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, जो स्पीच है वो आप एज ए करुणा या करण देंगे. आप स्कूल के हेड बॉय हैं, हेड गर्ल हैं, और ये स्पीच आप स्कूल की मॉर्निंग असेंबली में देंगे. तो बच्चे ओपनिंग लाइंस जिस तरह से मैंने आपको लिखाई है उस तरह से लिखनी है. गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, वर्दी टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स. टुडे आई करण, द हेड बॉय ऑफ द स्कूल, इज गोइंग टू प्रेजेंट माय व्यूज ऑन द टॉपिक दैट इज द बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग. ठीक है. आप ओपनिंग लाइन से पहले एक कोट भी लिख सकते हैं, कोटेशन भी आप लिख सकते हैं. अगर एक कोटेशन इस पे मैं आपको बताऊं तो कोटेशन है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज. आप ओपनिंग लाइन से पहले, ओपनिंग पैराग्राफ से पहले भी लिख सकते हैं, और आप क्लोजिंग लाइंस के बाहर भी बाद भी लिख सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली. ये आपके ऊपर टिपिकली डिपेंड करता है, ठीक है बच्चे. आप यहाँ पे जजेस नहीं लिखेंगे, क्योंकि जजेस जो हैं वो डिबेट राइटिंग में ही यूज़ होता है. जजेस क्या होते हैं? जो कि आपके परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, मगर मॉर्निंग असेंबली में आपके परफॉर्मेंस को चेक नहीं किया जाता. इसलिए अगर आप जजेस लिखते हैं तो ये डिबेट बन जाएगा, आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा. आप यहाँ पे जजेस नहीं लिखेंगे. मॉर्निंग असेंबली में प्रिंसिपल सर या मैम की प्रेजेंस रहती है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल सर को ऑनर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन्हें विश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि जब भी हम स्टार्ट करते हैं ओपनिंग लाइन्स तो प्रिंसिपल सर को विश करते हैं, तो इसलिए आपने स्टार्ट किया. गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, वर्दी टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई करण, हेड बॉय ऑफ द स्कूल, इज गोइंग टू स्पीक ऑन दी
गिवन टॉपिक दैट इज बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग। और आप इसमें क्या क्या लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि सुबह उठने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो बच्चे जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा माइंड जो है वो एकदम फ्रेश होता है ना। हमारा माइंड फ्रेश होने के कारण हम सुबह जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारी मेमोरी शार्प होती है एंड वी हैव एबिलिटी टू लर्न मोर इफेक्टिवली इन द मॉर्निंग आवर्स एज कम्पेयर टू अदर टाइम स्लॉट्स ऑफ द डे। ठीक है, अदर टाइम ड्यूरेशन ऑफ द डे। ठीक है, हम पॉजिटिव होते हैं, हम सुबह सुबह फ्रेश एयर लेते हैं, हम अपने पर्सनल जो टाइम है वो मॉर्निंग में अपने काम करने से पहले या स्कूल जाने से पहले या ऑफिस जाने से पहले उसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, हम सुबह उठ के हमारी बॉडी फिट रहती है, हम एनर्जेटिक रहते हैं थ्रू आउट द डे, और हम सुबह उठ के प्रे करते हैं जिससे हम एक अच्छे ह्यूमन बनते हैं और हमारा जो माइंड सेट है वो बिल्कुल पॉजिटिव रहता है थ्रू आउट द डे। तो बच्चे इस तरह से आप लिख सकते हैं इसके ऊपर। नाउ वी विल बी टॉकिंग ऑन दी एरर्स। ठीक है बच्चे, एरर का फॉर्मेट पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। जब भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे आपको पैराग्राफ री राइट करना है। बच्चे आपको पैराग्राफ री राइट करना है जैसे कि इस बच्चे ने किया है, और आपको इनकरेक्ट वर्ड को रिप्लेस करना है करेक्ट वर्ड के साथ और उसे अंडरलाइन करना है। ठीक है, अगर हम डिस्कस करें आंसर्स, ए फॉक्स सॉ ए क्रो ईटिंग ए पीस ऑफ ब्रेड। सॉरी, यहाँ पे ईट है तो ईटिंग हो जाएगा, उसने खाते हुए देखा है ना, तो यहाँ पे ईटिंग आएगा। ही वंडर्ड हाउ ही माइट बिफूल द क्रो, यहाँ पे कैन आएगा। क्यों? उसने सोचा कि उसको किस तरह से उल्लू बना सकता है। तो उल्लू बनाना इज ए एबिलिटी। एबिलिटी किसके साथ रिफ्लेक्ट होते हैं? कौन से मॉडल के साथ? कैन के साथ, इसलिए यहाँ पे कैन आएगा। राइट, ही सेड वेरी पोलाइटली वुड यू प्लीज पे सम अटेंशन। लिटिल अटेंशन नहीं होती है ना, कुछ अटेंशन, तो इसलिए यहाँ पे सम आएगा। राइट, आगे कहता है अटेंशन टू मी, व्हाट अ नाइस बर्ड यू आर। अभी कहता है कि क्या अच्छे बर्ड हो, विद एक्सक्लेमेटरी मार्क। योर वॉइस डैश बी वेरी स्वीट, योर वॉइस मस्ट बी वेरी स्वीट आएगा यहाँ पे। ठीक है, योर वॉइस, सॉरी दिस इज रॉन्ग, मस्ट बी वेरी स्वीट। यहाँ पे मस्ट क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे नाइस जो है वो एडजेक्टिव लगाया और ये कंपल्शन आ जाएगा। कंपल्शन जो है वो मस्ट होता है, इसलिए यहाँ पे मस्ट आएगा। 7 मार्क्स। राइट, आई थिंक यू कैन सिंग वेरी वेल। अगेन यहाँ पे एबिलिटी शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कैन आएगा। द फुलिश क्रो वॉज फ्लैटर्ड इट ओपन इट्स। यहाँ पे प्रोनाउन जो है इट यूज हुआ है, तो यहाँ पे इसलिए इट्स आएगा। बीक द पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन, यहाँ पे बिलो की जगह डाउन आएगा। पिक्ड है, यहाँ पे पास्ट यूज हुआ है, तो यहाँ पे रन नहीं, रन को चेंज करेंगे रैन में। इज इट क्लियर बच्चे? तो आई होप आपको एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन कनेक्ट मी अगेन। तो बच्चे आपका सेक्शन बी यहाँ पे खत्म होता है। नाउ वी आर मूविंग टू सेक्शन ए। गिव मी ए मिनट। सेक्शन ए कंप्राइजेज ऑफ 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नोट मेकिंग पे है और दूसरा क्वेश्चन पैसेज पे है। ठीक है, नोट मेकिंग बच्चे इट विल बी कमिंग फॉर 10 मार्क्स इंक्लूडिंग समरी। राइट, you have to write the abbreviation, the proper format has to be followed. You won't be compromising on the basis of format which has been taught you in the class. तो बच्चे यहाँ पे अगर हम नोट मेकिंग की बात करें, आपको सबसे पहले टाइटल देना है। टाइटल देने के बाद नोट्स लिखने हैं और नोट्स लिखने के बाद you have to abide the right way of writing the notes. Okay, यहाँ पे टाइटल आ गया, नोट्स लिखें, आपने हेडिंग लिखी और हेडिंग के 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ये सब हेडिंग आ गई। ठीक है, आपने सेकंड लिखा है, दिस इज योर सेकंड हेडिंग। अब इसके सब पॉइंट देने हैं, सेकंड सब हेडिंग, सॉरी सेकंड सब हेडिंग। राइट, अब आपको इसके सब पॉइंट्स देने हैं, इंडिविजुअल सब पॉइंट्स देने हैं। तो बिल्कुल सही लिखा है इस बच्चे ने, बट सी देयर इज ए प्रॉब्लम विद द फॉर्मेट। प्रॉब्लम ये है, जब भी आप एब्रीविएशन यूज करेंगे नोट मेकिंग में, आप एब्रीविएशन को अंडरलाइन करेंगे। आप अगर एब्रीविएशन को अंडरलाइन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली यू विल लूज योर मार्क्स। इसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, यू कैन इवन यूज एब्रीविएशन इन दी टाइटल एंड यू आर इवन अलाउड टू यूज एब्रीविएशन इन दी सबटाइटल। गॉट इट बच्चे? ओके, तो इसके बाद आपको एब्रीविएशन बॉक्स का एब्रीविएशंस के लिए बॉक्स बनाना है। राइट, एब्रीविएशन
किस तरह से बनती है, बहुत ही अच्छे से बनाई है इन्होंने। जैसे कि कनेक्टेड है तो आपको वॉवल्स हटानी है, CNCTT, वेरी नाइसली मेड बाय दिस स्टूडेंट, थैंक यू। क्लास आपको समरी जो है एक फ्रेश पेज से शुरू करनी है, सिंगल पैराग्राफ में लिखनी है, 80 वर्ड्स की होनी चाहिए, और जब भी आप समरी लिखेंगे तो प्रेजेंट टेंस आपका यूज होना चाहिए। समरी का टाइटल देना है, दिस स्टूडेंट हैजंट गिवन द टाइटल फॉर द समरी, तो समरी को आप प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, टाइटल देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर नोट मेकिंग का टाइटल और समरी का टाइटल सेम होना चाहिए। बच्चे नहीं, सेम नहीं होना चाहिए। आपका नोट मेकिंग का टाइटल और समरी का टाइटल सेम नहीं होना चाहिए। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यू विल बी मूविंग टू अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज की बात करें बच्चे, यू हैव टू राइट द क्वेश्चन, एंड आफ्टर राइटिंग द क्वेश्चन यू नीड टू आंसर दोज क्वेश्चन, then only you will be able to get marks, else you will be losing your marks. I hope the things which we have discussed right now would be clear to you, or I am expecting the same method and presentation of yours in the upcoming examination and in the final examination. I wish you luck, work hard, do your best. If there would be anything, any doubt, please feel free to connect me anytime. It would be rather appreciated. Thank you and wish you best of luck and wish you a nice day ahead. Thank you.